Hello students. So bachcho, a very good morning to all of you. So we were doing redox reactions. We have already done oxidation numbers, exceptional oxidation numbers. फिर अपन ने किया सी बच्चे कि how do we decide oxidation and reduction on the basis of oxidation numbers, and then we did oxidizing agents and reducing agents, है ना, कि जिस दी खुद दी रिडक्शन होएगी दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे ਨੂੰ ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली जिस दी खुद दी ऑक्सीडेशन होएगी ਉਹ दूसरे ਨੂੰ रिड्यूस करेगा, दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ इसी टॉपिक ਨੂੰ कैरी फॉरवर्ड करना है एंड अपन ने करना है हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे दोनों ही पैरेलल टर्म्स है, मतलब देखो बेसिकली आप कहने हैं हुन देखो लाइक फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स, मतलब ग्रुप 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ +1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ +1। ग्रुप 2 की वैलेंसी होंगी है +2, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा +2। फ्लोरीन की वैलेंसी इज -1 क्योंकि ਉਹਦੇ आउटर शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सिमिलरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 है, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे वैलेंसी नालों वेरी करता है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। नॉर्मली ਆਪਾਂ दोनों टर्म्स ਨੂੰ पैरेलली यूज कर ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁక్స్ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਬਟ ਬੱਚੇ देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ एग्जांपल ਦਿੰਨਾ ਹੈ कि you have F2 fluorine gas। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 0। ਬਟ ਬੱਚੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ -1 ਹੈ, ਸੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ +1, ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ -1। अगर मैं कल्ले सोडियम की गल करा तो इत्थे सोडियम इज 0, बट वैलेंसी बच्चे अगर मैं कहां कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, वो डिपेंड नहीं करता कि मैं इसकी गल कर रहा कि इसकी। सोडियम की वैलेंसी विल ऑलवेज बी +1 क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है। सो यू गेटिंग अ पॉइंट कि वैलेंसी ते ऑक्सीडेशन नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ पैरेलली यूज कर ਲੈਂਦੇ ਆ, बट ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ some major differences है। आज पहला मैं ਉਹ डिफरेंसेस ही ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर करांगा कि what are the exact differences between valency and oxidation number। सो बच्चे नोट्स ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ डिफरेंस इज valency is the combining capacity of an element। So this is defined as the combining capacity of an element। अपन last chapter च भी कीता सी periodic table च कि valency is the combining capacity of an element, मतलब कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स फालतू है ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਘੱਟ है, ठीक है। अगर किसी को शॉर्टेज ना होवे ਤਾਂ valency 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, है ना, कि नोबल गैसेस ਦਾ आउटर शेल कंप्लीट है, ठीक है, इट डजंट नीड एनी इलेक्ट्रॉन्स, ना ही ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ, and that is why valency is known as the combining capacity of an element। ऑक्सीडेशन नंबर दी डेफिनेशन बच्चे आप कर ही चुके इस चैप्टर च। इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज which an atom appears to have in the combined state। याद है कि नहीं? It is the real or imaginary charge which an element या atom appears to have in the combined state। Second
जो पॉइंट ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस किया कि वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड बच्चे है ना। वैलेंसी का जो पीरियोडिक टेबल के बेस पे जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अपन ने डिसाइड कर ली वही रहेगी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन कि अपन किस कंपाउंड की गल कर रहे हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल देना मैं सबको। सो देखो, लेट इट बी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8 2,6, सो इट इज डेफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी तो लेके स्टेबल होता है, ठीक है। सो उसकी वैलेंसी कितनी आई बच्चे? ऑक्सीजन की वैलेंसी इज ऑलवेज -2, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल होएगा। अगेन आई रिपीट कि अपन -2 लिखना जरूरी नहीं है, वैलेंसी इज 2, माइनस का मतलब कि इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हुन इसी ऑक्सीजन के मैं 3 कंपाउंड्स बनाना है। सो देखो, वाटर, O2 and OF2, fine. Hydrogen will be +1, oxygen will be -2, pure state है तो 0, fluorine will be -1, oxygen will be +2। सो तिन्ना दे विच ऑक्सीजन दा ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है बच्चे, एक च -2 है, एक च 0 है, एक च +2 है। अगर परऑक्साइड्स लेंदे तो -1 हुंदा, अगर सुपर ऑक्साइड लेंदे तो -1/2 हुंदा, अगर O2F2 ले लेंदे तो +1 हुंदा। सो ऑक्सीडेशन नंबर्स तो वेरी कर रहे हैं बच्चे, बट वैलेंसी हुन मैं सानू पूछा कि वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन दी, है ना। तो वैलेंसी का बच्चे जनरल जो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल इस पे बेस पे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2, दैट्स इट, गेटिंग अ पॉइंट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इसी करके तो अपन ये कहने कि रियल और इमेजिनरी चार्ज। हुन देखो, ऑक्सीजन का एक्चुअल चार्ज जेड़ा मोस्टली अपन को मिलदा कि हुंदा -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हुंदी है ना। तो ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो दिस इज द रियल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ये वाले बच्चे these are the imaginary charges जो इस कंपाउंड्स ਲਈ स्पेसिफिक है, जो अपन को हमेशा नहीं मिलते। So oxidation number depends upon the compound to compound. Fine. Now, valency is always a whole number. So valency या तो 0 होएगी या 1 2 3, ठीक है। So valency is always a whole number, जबकि आप बहुत सारी एग्जांपल्स कर लिया है ना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है that can be fractional। आप दोनों चीज़ां दोनों पॉइंट्स एक दे विच ही कवर कर दें। देखो हुन जरा ध्यान नाल सुनो कि आप तीनों डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन नंबर दियां आप एक दे विच ही कवर करांगे। सो देखो ना, सो आप पॉइंट कर रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जिवें मर्जी हो सकता है ना। नाउ लेट इट बी द क्लासिकल केस ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल, ਕਿਹੜੀ एग्जांपल ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, so let it be Fe3O4, so this is -2 and iron becomes +8/3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ this compound exists as FeO dot Fe2O3। ਤਾਂ 2 ਆਇਰਨਸ ਇੱਥੇ +3 ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਇੱਥੇ +2 ਹੈ, याद है कि नहीं। सो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो तीनों आयरन्स का आ गया। सो बच्चे देखो ये फ्रैक्शनल भी है, ठीक है, एंड हुन एक इमेजिनरी चार्ज है, क्योंकि एक्चुअल दे विच तां एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल दे विच तां आयरन का जिहड़ा इत्थे चार्ज है दैट इज +2 एंड +3, जबकि आपां +8/3 की कह रहे हैं ओवरऑल एवरेज चार्ज तीनों आयरन्स का, है ना। सो इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, आपां उसको रियल चार्ज नहीं बोल सकते। सो दिस इज द डिफरेंस कि ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स कंपाउंड टू कंपाउंड ये वेरी करेगा। देखो इको कंपाउंड दे विच 2 मिल गए, FeO दे विच +2, Fe2O3 दे विच +3, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि नोबल गैसेस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ वैलेंसी कदे भी 0 नहीं होती, सिर्फ नोबल गैसेस ਦੀ कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे 0 हो सकता है, ठीक है कि नहीं। आपने ऑलरेडी कहता कि किसी भी
प्योर एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। जबकि वैलेंसी का बच्चे हुन देखो अगर मैं तुहानू कहां कि O2 F2 सो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का कितना है 0 0। जबकि वैलेंसी की गल करा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी विल बी ऑलवेज -2, फ्लोरीन की ऑलवेज -1, ठीक है ना। सो वैलेंसी कैन नेवर एवर बी 0, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर अपन को 0 मिल सकता है। So बच्चे these are 4 major differences between valency and oxidation number. Again I repeat कि valency ते oxidation number ਨੂੰ confuse ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ they are one and the same thing, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ again I repeat ਕਿ oxidation ਦੇ ਟਾਈਮ oxidation number ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁక్స్ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ valency ਵੱਧਦੀ ਹੈ, valency remains the fixed, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। Getting a point, bache? So the next topic now is bache types of redox reactions. So types of redox reactions मतलब भी अपन जो redox reactions है वो किस तरह दियां मिलती हैं। So there are 4 types of redox reactions: combination, decomposition, disproportionation and displacement reactions. मैं सुन दसदा बच्चे कि this is a very important part. So disproportionation ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ questions ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ chances are maximum, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। now ਇਹ names ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। combination ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, that is called to combine, ਹੈ ਨਾ। like for example ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ A plus B gives you AB, तो दो अलग अलग एटम्स ने मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता। हुन इसदा उल्टा अगर मैं AB ਨੂੰ एनर्जी देके हीट देके जिवें मर्जी तोड़ दवां A plus B, तो then it is called decomposition, टूट गया, ठीक है ना। इन्हां दे भी आपां आने हैं। डिस्प्लेसमेंट की हुंदा बच्चे, टू डिस्प्लेस कर देना, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं AB दे विच C पावां तां AC बन गया B आउट, सो C ने B ਨੂੰ रिप्लेस कर लिया, डिस्प्लेस करता। डिस्प्लेस मतलब किसी ਨੂੰ उसकी जगह तो बाहर निकाल के उसकी जगह ते खुद आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो नाउ C हैज डिस्प्लेस्ड B फ्रॉम द कंपाउंड। नाउ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ then it is called redox reactions। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि सारियां रिएक्शंस रिडॉक्स हो सकता है कि डीकंपोज हो रहा है बट कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही, तो देन इट इज नॉट रिडॉक्स, ठीक है ना। मैं एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल देके तुहानू समझ आएगी। सो पहले we'll come on to the first type of the reaction। अपन चारों रिएक्शंस करते हैं एंड अगेन आई रिपीट कि the important one to be asked in the exam is disproportionation, very important। now firstly combination reactions, जिथे अपन की कहांगे बच्चे the type of reactions where 2 or more reactants combine together to form a single product, ठीक है ना। like for example अगर मैं समझूं कहां कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके की बन गया बच्चे वाटर, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके की बन गया बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। सो अपन क्लियरली दिख रहा है बच्चे कि दो या दो तो ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हुन देखो बच्चे अगर कॉम्बिनेशन दे विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्वड है तो रिएक्शन रिडॉक्स भी बन जाती है, ये जरूरी नहीं है। सो पहला आपां इत्थे चेक करो। सो बच्चे इत्थे हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 0, ठीक है। ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1। सो अपन को क्लियरली दिख रहा है ऑक्सीजन दी की होगी रिडक्शन, -2 हो गया। हाइड्रोजन 0 तो की हो गया +1, सो हाइड्रोजन दी की होगी ऑक्सीडेशन, सो इट इज अ रिडॉक्स। नाउ कार्बन 0 0 -2 +4, सो बच्चे कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस्ड। So again this is a redox reaction क्योंकि किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड किसी कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है।
सपोज अगर ऐदा ना होवे, लाइक फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट। सो देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं, सो दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हुन मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज -2, कैल्शियम इज +2, oxygen is -2, carbon is +4. So बच्चे alkali metals are always +2, oxygen -2, carbon is +4. ਹੁਣ जरा चेक करो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, कैल्शियम +2, +2, ऑक्सीजन -2, -2, कार्बन +4, +4. सो बच्चे सारी एलिमेंट्स दे ऑक्सीडेशन नंबर्स आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है ना, सो किसी दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ which are also redox reactions, जबकि नीचे वाली रिएक्शन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ it is a combination reaction but it is not a redox reaction। so ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ रिडॉक्स कदों होने के चांसेस है तो तुसी की लिखोगे, सो कंडीशन बच्चे ध्यान नाल लिख लेनी है नाल किते भी स्टार मार के या रफ कॉलम कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स कदों होएगी, ਉਹਦੇ ਲਈ एक कंडीशन होनी जरूरी है कि one or more reactants या products should be one or more reactants या products should be in pure state। so कोई ना कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर स्टेट होना चाहिए। जिवें इधर देखो दोनों रिएक्टेंट्स प्योर है, प्योर हाइड्रोजन प्योर ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड नहीं है। ਇੱਥੇ भी दोनों रिएक्टेंट्स प्योर है। ठीक है, जबकि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ नीचे रिएक्शन लेती सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी प्योर नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड च कैल्शियम ते ऑक्सीजन है, CO2 दे विच कार्बन ते ऑक्सीजन है एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी कंपाउंड है। सो अगर कोई ना कोई रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट प्योर फॉर्म च होणगे फिर रिडॉक्स होने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है ना, ये पॉइंट नु ध्यान च रख लेना है। ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हुण देखो बच्चे, सो वी नेक्स्ट मूव ऑन टू second type of reactions which are called decomposition reactions। so बच्चे decompose का मतलब की होता है टूट जाना, है ना, decompose हो जाना, खत्म हो जाना। so decomposition reactions are those जिहदे विच एक single reactant it breaks down to give smaller products, एक तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट तो टूट के एक तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है ना, अगेन देखो, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, मैं उसको हीट किया एंड ब्रेक डाउन करके मैं उसको हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, नाउ क्लोरीन इज -1, हाइड्रोजन इज +1, ऐसे दोनों प्योर फॉर्म च है 0 एंड 0 एंड सो क्लियरली दिख रहा है कि हाइड्रोजन +1 तो 0, सो रिड्यूस हो गया, सो हाइड्रोजन की होगी रिडक्शन, क्लोरीन -1 तो 0 इंक्रीज हो गया, सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजन हैज बीन रिड्यूस्ड एंड क्लोरीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। फाइन, ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन हैज बीन रिड्यूस्ड एंड क्लोरीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। सो बच्चे हुण आपां नूं इस तो क्लियरली पता लग रहा है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, किसी दी रिडक्शन हो रही है, किसी दी ऑक्सीडेशन। एंड बिल्कुल कॉम्बिनेशन की तरह अगर सपोज इत्थे रिडक्शन ते ऑक्सीडेशन ना हुंदी, ठीक है, फिर ये रिडॉक्स नहीं होनी सी। एग्जांपल देखो, लेट इट बी आई हैव मैग्नीशियम सल्फेट, मैं इसको हीट करता एंड आई गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो अगेन देखो बच्चे, एक सिंगल कंपाउंड सी टूट के मेरे को दो छोटे कंपाउंड्स बन गए। ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऑक्सीजन -2, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2, सल्फर हो गया +6।
मैग्नीशियम +2 -2 +6 एंड -2। सो बच्चे देखो मैग्नीशियम इधर भी +2 है, +2, सारी ऑक्सीजन्स -2 एंड -2, सल्फर +6, ਇੱਥੇ भी +6। सो किसी दी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हुई, किसी दा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होया, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ नीचे वाली रिएक्शन है ये डीकंपोजिशन ਤਾਂ है बट रिडॉक्स नहीं है। ਜਿਹੜੀ ऊपर वाली है वो डीकंपोजिशन भी है एंड रिडॉक्स भी है। ਕਿਹੜੇਗਾ पॉइंट नाउ, ठीक है। अगेन ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋजिशन ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਡॉक्स ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ when one of the reactants ਜਾਂ products are present in their pure form। देखो ਇੱਥੇ products दोनों की है pure, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ कंपाउंड फॉर्म ਚ है, कोई भी प्योर नहीं है, तो देखो कोई रिडॉक्स नहीं हो रही। ਇੱਥੇ देखो एक कंपाउंड है बट ये दोनों प्योर है, ठीक है ना। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ अपनी प्योर फॉर्म च प्रेजेंट होंगे तो देन इट विल बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। गेटिंग अ पॉइंट बच्चे। अच्छा एक कंडीशन भी हमेशा नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं कि जिथे मतलब कोई ना कोई रिएक्टेंट दे प्रोडक्ट प्योर फॉर्म च प्रेजेंट है, मैं ओदी एग्जांपल भी दे दांगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि जिथे कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर फॉर्म च प्रेजेंट है तो हमेशा रिडॉक्स होएगी, बट नॉर्मली, ठीक है ना। सो ऑलवेज नहीं, ठीक है। So it is a major condition कि when one of the reactants या products are present in their pure form, the reaction, it is a very high chance कि the reaction will be a redox reaction, ठीक है ना। But again at the end of the day ਆਪਾਂ oxidation number check करके ही पता करांगे। अगर oxidation numbers change हो रहे ने, एक दा increase हो रहा है एक दा decrease, तो redox है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स दोनों साइड पे सेम है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बच्चे। गेटिंग अ पॉइंट नाउ, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो अगेन बच्चे आई रिपीट कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, नॉर्मली आस्क्ड इन थ्योरी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। थ्योरी विच डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एग्जांपल दियो, ठीक है। एमसीक्यूज दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ठीक है ना। सो ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ which of the reaction is disproportionation। now what do you mean by disproportionation। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ठीक है। एंड ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। सो फर्स्ट रिएक्शन इज कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दे ब्रेक डाउन टू गिव अ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल्स वाटर दे मिल गए बच्चे मेरे को एंड एक ऑक्सीजन दा। another example I write down, I have phosphorus, मैं उसदे विच पाए 3 moles of KOH, potassium hydroxide plus again 3 moles of water, and I have got phosphine plus 3 moles of KH2PO2. This is called potassium hypophosphite. Now, so I hope कि ये balanced है। एक मिनट, 3s are 9, so 3 2s are 6 9 10 fine। सो बच्चे इन दो एग्जांपल्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब डेफिनेशन ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ +1, ऑक्सीजन इज -1। बच्चे थे ऑक्सीजन -2 नहीं आएगी, पेरोक्साइड है, डन। नाउ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, here ऑक्सीजन इज 0, फाइन। नेक्स्ट प्योर phosphorus, so 0। potassium is always +1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, so +1, ऑक्सीजन is -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, phosphorus -3, potassium +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, so potassium कितना होया बच्चे 3 -4, so +1, डन।
बच्चे दोनों रिएक्शंस देख के तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हो जरा ध्यान नाल देखो। पहला तो ये देखो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही, एंड अगर हो रही है तो जरा देख के दसो कि किस दी हो रही है, ऊपर वाली रिएक्शन से नीचे वाली रिएक्शन। टेक योर टाइम, 5 to 10 सेकंड्स ला लो। हाँ जी, सो ऊपर वाली ते नीचे वाली रिएक्शन ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ एंड ਦੱਸੋ कि ਇੱਥੇ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही, एंड अगर हो रही है तो किस दी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड किस दी रिडक्शन हो रही है। सो आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ सबने देख लिया होगा। ऊपर वाली रिएक्शन च बच्चे ऑक्सीजन दी ही रिडक्शन हो रही है -1 to -2, एंड अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन दी ही रिडक्शन हो रही है। You getting my point? ऑक्सीजन दी ही रिडक्शन हो रही है एंड ऑक्सीजन दी ही ऑक्सीडेशन हो रही है। दोनों ऊपर वाली रिएक्शंस, दोनों ऑक्सीडेशंस भी ते रिडक्शन भी किदियां हो रही ने ऑक्सीजन दियां, ठीक है ना। मेरे को टोटल कितनी ऑक्सीजन है, 2 2s are 4, दो चलियां गई वाटर च, दो इधर आ गई, यानी कि दो ऑक्सीजन दी की हो रही है ऑक्सीडेशन ते दो ऑक्सीजन दी की हो रही है रिडक्शन। ਹੁਣ मैं इधर चेक करता बच्चे, ठीक है। टोटल मेरे को 4 फास्फोरस है, बाकी सब दे ऑक्सीडेशन नंबर्स देखो सेम है। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ फास्फोरस इधर आ गया, 3 1s are 3 फास्फोरस इधर आ गए, तो फास्फोरस दी ही रिडक्शन हो रही है ते फास्फोरस दी ही ऑक्सीडेशन हो रही है। समझ आ रही है चीज, ठीक है ना। तो दोनों रिएक्शंस दे विच की हो रहा है, जेड़े कंपाउंड दी या जेड़ी एलिमेंट दी ऑक्सीडेशन हो रही है उसी एलिमेंट दी रिडक्शन हो रही है बच्चे। डन। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस वेयर the same compound is oxidized as well as reduced, या the same element is oxidized as well as reduced. This is what you mean by disproportionation. Very 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 important बच्चे, ठीक है ना। सो ये चंगी तरह तुसी कर लेना है। नेक्स्ट, सो बच्चे लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सबनों पता है कि डिस्प्लेसमेंट की होती है ना, कि व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, ठीक है ना। एंड एक सिंपल जा फंडा है कि व्हेन डज द डिस्प्लेसमेंट अकर। हुण तुसी मैनूं एक मैं तुहानूं एग्जांपल दे नाल अगेन स्टार्ट करावांगा, ते तुसी पीरियोडिक टेबल कर चुके हो, ते जरा मैनूं दसो कि किहड़ी रिएक्शन इन्हां विचों हो सकदी है और किहड़ी रिएक्शन नहीं हो सकदी। सो देखो बच्चे, लेट इट बी, देखो बच्चे ध्यान नाल आपां हर चीज नूं क्रैम नहीं कर सकते, तो लॉजिकली दिमाग च बिठा के चलना आपां ने, ठीक है ना। सो देखो जरा, so one I have sodium hydroxide या कह लो सोडियम क्लोराइड, मैं इस दे विच पाया पोटेशियम एंड मेरे को बन गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम। सो बच्चे इस रिएक्शन दे विच पोटेशियम हैज डिस्प्लेस्ड सोडियम, मैं उल्टा भी लिखता, पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम। फाइन। हुण नीचे वाली रिएक्शन सोडियम ने पोटेशियम को डिस्प्लेस करता, ठीक है। सो दोनों विचों थोड़े अकॉर्डिंग केड़ी रिएक्शन हो सकती है ते केड़ी रिएक्शन नहीं हो सकती, which one is possible and which one is not possible, any idea बच्चे, ठीक है ना। now so सोचो जरा, take few seconds कि दोनों विचों केड़ी रिएक्शन हो सकती है एंड केड़ी रिएक्शन नहीं हो सकती। चलो, सो बच्चे हुण मतलब डिस्प्लेसमेंट कदों हुंदी है, when does displacement occur। मतलब मैं तुहानूं दो ऑप्शंस दिना है कि लाइक चलो एक सिंपल जी गल, जेडे बच्चे स्पोर्ट्स च इंटरस्ट रखते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीम दे विच 11 प्लेयर्स है ना, लाइक क्रिकेट टीम दे विच 11 प्लेयर्स खेलते हैं। हुण एक 12वां प्लेयर आके 12th प्लेयर आके कहे कि मैनू टीम दे विच प्लेस दित्ती जाए, ठीक है। तो नैचुरल है कि 11 दे विचों एक नूं बाहर बैठना पड़ेगा। ये कदों होएगा बच्चे, उहदे बोलन नाल ही हो जाएगा, ठीक है। हुण तो माइंड च आ गया होगा ना भी कदों होएगा ये,
ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਉਹ 12th ਮੈਨ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਖੇਲੂਗਾ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12th ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਕਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सो आ दोनों पड़े हैं। सो दोनों में जो स्ट्रॉन्गर मेटल केड़ा बचे? इथे मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों मेटल्स हैं, ठीक है। इन दोनों जो स्ट्रॉन्गर मेटल केड़ा है? मूविंग डाउन इन द पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल। सो बच्चे पोटेशियम सोडियम नु डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि सोडियम पोटेशियम नु डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो नीचे वाली रिएक्शन नहीं होएगी, सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन होएगी। यू गेटिंग अ पॉइंट? एक स्ट्रॉन्गर चीज एक वीकर चीज नु डिस्प्लेस कर सकती है, एक वीकर चीज स्ट्रॉन्गर चीज नु डिस्प्लेस नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बच्चे, ठीक है ना। अच्छा हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡॉक्स हो रहे हैं। सो देखो -1 + 1 0 -1 + 1 0। सो सोडियम +1 तो 0 आ गया, रिड्यूस हो गया। पोटेशियम 0 तो +1, सो ऑक्सीडाइज हो गया। सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट इट इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे, ठीक है ना। रिडॉक्स ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਡਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗਰ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ displaces a weaker metal या non metal। एक चीज याद रखनी है, एक stronger metal weaker metal ਨੂੰ displace ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ stronger non metal weaker non metal ਨੂੰ displace ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ non metal metal ਨੂੰ ਜਾਂ metal non metal ਨੂੰ displace ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। getting a point? ठीक है, एक stronger metal weaker metal ਨੂੰ displace ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ stronger non metal weaker non metal ਨੂੰ displace ਕਰੂਗਾ। ठीक है, done। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ examples ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So बच्चे before I start off with the examples, again I would like to repeat कि एक stronger metal weaker metal ਨੂੰ displace ਕਰੂਗਾ और एक stronger non metal weaker non metal ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ metals and non metals ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ metals ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ strongest metal, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, देन पोटेशियम, सोडियम। सो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। वैसे एक्व सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਇਨ एक्वस सॉल्यूशन। रीजन हम बाद में करेंगे कि ड्राई फॉर्म सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑफ कोर्स, जबकि पानी दे विच लीथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ठीक है ना। उस तो बाद बचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फाइन। सो सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। मैं थोड़ा टाइट करके लिख देना ताकि जिंक तो बाद आयरन, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स है। जिवें जिवें अपन नीचे आ रहे हैं ये वीक होते जाएंगे। डन। नॉन मेटल्स दे विचों स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल इज फ्लोरीन, उस तो कट ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन। सो मेनली जो अपने मेन है ना, जो अपन रिएक्शंस जानते हैं। एंड बच्चे याद रखना है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन बिटवीन।
हाइड्रोजन हैज बोथ मेटैलिक एज वेल एज वैसे एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ठीक है ना, बट ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ -1, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ +1। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ डिस्प्लेसमेंट्स करवाना है, ठीक है। सो देखो, नंबर 1 मेरे पास जिंक सल्फेट है, मैं उसਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीशियम पाया। सो देखो बच्चे, जिंक ਇੱਥੇ है, मैग्नीशियम ਇੱਥੇ। सो मैग्नीशियम इज अ स्ट्रॉन्गर मेटल, वो अपना बनाएगा कंपाउंड और जिंक आउट, डन। ਹੁਣ अगर मैं इस जिंक सल्फेट लेट इट बी आ पाया ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ, ਟਿਨ, ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, 골ਡ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਨਾउ ਉਲਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜ਼ਿੰਕ। ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ एंड कॉपर आउट, क्लियर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट होगी, हुन देखो ऑक्सीजन इथे जिंक +2, इथे 0, मैग्नीशियम 0 +2, कॉपर +2, इथे 0, जिंक +2, इथे 0। सो देखो, जिंक दी होगी रिडक्शन, मैग्नीशियम दी ऑक्सीडेशन, नीचे कॉपर दी होगी रिडक्शन, जिंक दी होगी ऑक्सीडेशन। So metals have been displaced। एक stronger metal एक weaker metal ਨੂੰ displace ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਵੇ, ਸੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੌਰੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਵਾਂ, सो सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना। सो देखो रिएक्शन होएगी NaOH प्लस H2 आउट, ठीक है। हुन सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्शन कोल्ड वाटर च हो जाएगी, ठंडे पानी नाल, ठीक है ना, इजीली, मतलब क्योंकि सोडियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो फटाफट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो हाइड्रोजन +1 तो 0 हो गया, सोडियम 0 तो +1 हो गया बच्चे। सो सोडियम हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन। मैं नीचे आ गया इथे मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम वगैरह थे, है ना। सो रिएक्शन इज सेम, मैं मैग्नीशियम दे विच वाटर पाया, की हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 आउट। सो हाइड्रोजन गोज फ्रॉम +1 to 0 and magnesium goes from 0 to +2। मैग्नीशियम ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਇਰਨ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ Fe2O3 प्लस ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਊਟ। ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 3 3 2, ਡਨ, ਫਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੀਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੀਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨॉन ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਨੋਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਇੱਕ ਵੀਕਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਫਲੋਰੀਨ। ਕਲੋਰੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ NaBr ਬਣ ਗਿਆ, ਆਇਓਡੀਨ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ NaCl ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਆਊਟ, ਸੌਰੀ ਆਇਓਡੀਨ ਆਊਟ। अगर मैं उसके विच फ्लोरीन पाऊंगा तो NaF बन गया, आयोडीन आउट। सो तीनों नॉन मेटल्स आयोडीन को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों उस तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रही है, देखो किवें? आयोडीन -1 तो 0, ब्रोमीन 0 तो -1, ठीक है। हुण मैं अगर Na की जगह पे इत्थे ले लवां NaBr, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਜ਼ योर नॉन ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ NaCl ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ब्रोमीन आउट। अगर फ्लोरीन पाऊंगा तो NaF बन जाऊगा, ब्रोमीन आउट। अगर मैं इथे आयोडीन पा दूंगा तो नो रिएक्शन। गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि आयोडीन इज अ वीकर नॉन मेटल देन ब्रोमीन, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नाउ अगर मैं इथे सोडियम क्लोराइड ले लवां तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरीन तो स्ट्रॉन्गर कौन है? सिर्फ फ्लोरीन। सो मैं इस फ्लोरीन पाऊंगा या मैं ऑक्सीजन पा सकता सी, ठीक है। मैं फ्लोरीन पाऊंगा तो मेरे को 2NaF बन जाऊगा, क्लोरीन आउट। हुण अगर तुसी कहो कि सर NaF दे विचों फ्लोरीन आउट करनी है तो कोई भी नहीं कर सकता। द रीजन बीइंग कि पूरे पीरियोडिक टेबल च फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल। बच्चे गल समझ आई कि नहीं? तुसी अगर कहो कि सर मैं NaF चों फ्लोरीन बाहर निकालनी है, ठीक है, तो वो तुसी डिस्प्लेसमेंट नाल नहीं कर सकते, तुसी होर कोई मैथड नाल करना पऊगा। वो मैथड्स आपां बात करांगे जिवें कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो कोई भी नॉन मेटल फ्लोरीन नु बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल इन पूरा दा पूरा पीरियोडिक टेबल। सो दीज आर योर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। गेटिंग अ पॉइंट? अच्छा, एक एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਲੋਰਾਈਡ ਲਈ, ਸੌਰੀ वाटर लिया, वाटर दे विच फ्लोरीन पाती बच्चे, तो हाइड्रोजन ते फ्लोरीन, सो देखो हाइड्रोजन ते फ्लोरीन मिलके की बन गया 2HF, ठीक है। ऑक्सीजन होगी बाहर। सो हम देखो 2 एंड इत्थे आ जाएगा 4HF एंड O2 आउट। सो बेसिकली इथे फ्लोरीन ने किस नु डिस्प्लेस कीता? ऑक्सीजन नु। सो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगी। हुण देखो, सो लेट इट बी मेरे पास NaH है, सोडियम हाइड्राइड। मैं इस दे विच पाता फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी है ना, सो मैं क्लोरीन पाती। सो क्लोरीन ने आपदा बना लिया कंपाउंड, हाइड्रोजन नु करता बाहर। सो हाइड्रोजन नु नॉन मेटल ने भी डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है ना। सुन मैं की क्या सी कि हाइड्रोजन ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ +1 -1 0 +1 -1 0। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ -2 +1 0 -1 +1 0।
सो ऑक्सीजन -2 तो 0 ऑक्सीडेशन होगी, फ्लोरीन 0 तो -1 रिडक्शन होगी। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਕਰਵਾਏ ਆ ਬੱਚੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੀਡੀਐਫ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਟਿਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 13। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 13 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ that is a 100% question to be asked in exams, both theory as well as competitive। ठीक है, so जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है it will take time, काफी टाइम भी लगेगा and it needs a hell lot of practice। ठीक है ना, so कल ਆਪਾਂ बैलेंसिंग स्टार्ट करांगे and till then ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਡਾਊਟਸ ਆਪਾਂ ਇਵਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ बैलेंसिंग स्टार्ट ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ till then keep studying and revising, keep yourself fit and fine ਬੱਚੇ। thanks।